think of the recent incidents which have been taking place across the country, especially the social unrest, the rioting, the stone pelting, violence, and all those things. अच्छा नीरज, ये तो एक्चुअली जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं और जिसका अल्टीमेट कल्मिनेशन तो जहांगीरपुरी में हुआ है, ट्रेंड बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि बिल्कुल ही प्लान्ड तरीके से हुआ है। ये जहाँ जहाँ प्रोसेसन निकले हैं और वहाँ वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग हुई है, विद और विदाउट प्रोवोकेशन, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स विदाउट प्रोवोकेशन। अब इसमें हुआ क्या, ये जो जहांगीरपुरी वाला जो इंसिडेंट है ये थोड़ा सा ज़्यादा लाइमलाइट में आया। तो एक तो रीज़न ये है कि भाई ये दिल्ली का इंसिडेंट है, दूसरी बात ये कि ये वही जगह है जहाँ पे पिछली बार राइट्स हुए थे। एंटी सीएए प्रोटेस्ट भी यहीं से लगभग वही एरिया है जहाँ से काफ़ी सपोर्ट मिला था, जो शाहीन बाग वाला जो प्रोटेस्ट चला था। अब फैक्ट ये है कि प्रोवोकेशन कितना हुआ, क्या हुआ, ऐसा तो बहुत कुछ रिकॉर्ड में अभी तक या एविडेंस के तौर पे नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर कट है कि जो राइटर्स थे वो यूजुअली मस्जिद या उसके पास के एरिया के थे, और मस्जिद के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। नोबडी मेड एनी अटेम्प्ट टू अटैक एनी मॉस्क और समथिंग लाइक दैट। लेकिन इसके बावजूद भी गोली भी चलाई, पुलिस वाले के ऊपर गोली चलाई, और ऑफ कोर्स पुलिस वाले को चोट भी लगी। तो ये एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के थ्रू एक एक्सप्रेशन ऑफ पावर, एक डोमिनेंस के लिए ये पूरे जो 9 या 10 जगह जो हुआ है, ये उस तरीके से प्लान्ड करके कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको हमने डोमिनेट करना है बाय आवर ऑफेंसिव एक्शन। अब नेचुरली उसमें फिर इलीगलिटी तो ऑटोमेटिक आ जाती है, और जो जहांगीरपुरी में स्पेशली जो लोग हैं वो ज़्यादातर बांग्लादेशीज़ हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो उन लोगों ने बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो इट्स रियली सर्टेनली वेरी वेरी बैड ट्रेंड एज फार एज द ओवरऑल पीस एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री इज कंसर्न। या यू टेल अस। In my view, the worst part of whatever happened was the stay by Supreme Court without listening to the state. So it was a one-sided stay, which is unjust, number one. And why should Supreme Court intervene in a municipal level kind of dispute, so to say, and without giving any hearing to what the state has to say? That is one. Second thing, if the state say, and without exhausting all the remedies available to the petitioners at the lower courts. Supreme Court is basically the court of last resort. It is not the court for the first hearing itself. So the proper procedure, in my view, was not followed, and it was wrong on part of Supreme Court to have even given a hearing at that level, and it should have said. And it is not that Supreme Court has not done this. Supreme Court in many of the past cases has sent the petitioners back to the lower courts to get redressal, to address their grievances. So this is the worst part of it. Second, as you said, the attacks on the processions. See, ultimately, if something starts, it becomes competitive communalism. It doesn't stay restricted to a particular community. It spreads, and it is tit for tat. And tit for tat means if it happens at one place, at the other place, the other community will try to dominate and do whatever is possible to right or wrong in their perception. So basically, this was bound to happen sooner or later. And the biggest culprit, in my view, are not the rioters. It is the governments which have not put such acts with heavy hand. See, if law and order is to be maintained, it is the government which has to do it. Why should government watch sitting hand on hand, getting and see? It is not that it happened at one place. It was not one-off incident. It was in city after city, in 13, 14 major places. This happened.
So if it started happening at one place, at the second place, and there was a time gap also between a chunk happened on the Ram Navami and then again on the Hanuman Janmotsav rallies. And there was a gap between Ram Navami processions and the Hanuman Jayanti or Hanuman Janmotsav processions. The government could have been alert. What is the intelligence of the government doing? What are the feelers of the government doing? Should the government not have been better informed? See, if the government is there in power, it should do whatever is available at its disposal to get such information. And to say that such information was not available is something very difficult to digest. Either the government had the information and they did not act for whatever reason, and when it acted, why should a government order be leaked to the press? And why it looked as if it was made to leak, and they gave a chance to the critics and opponents to go to the court and get a stay. So it doesn't look like a very coherent strategy if the government has adopted that. So नीरज, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि गवर्नमेंट का तो फॉल्ट हुआ ही है. Where is the doubt in that? Government is certainly at the fault, but the point जो मैं लाना चाह रहा हूँ ना यहाँ पे, पॉइंट मैं ये लाना चाह रहा हूँ कि आफ्टर ऑल जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, किस तरीके से उन्होंने जो कॉन्स्पिरेसी की है ओवरऑल, क्योंकि 9 या 10 जगह पे एक साथ प्रोसेशंस के ऊपर जो पत्थरबाजी हुई है, और ऑफ कोर्स लोग घायल भी हुए हैं, कुछ जगह कैजुअलिटीज भी हुई हैं, ये अनप्लान्ड नहीं हो सकता. तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर ये प्लान्ड है तो फिर कॉन्स्पिरेसी किस लेवल की है, गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स उसको समझना पड़ेगा और इसको फिर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. दैट इज वन इम्पोर्टेंट पॉइंट. और दूसरी बात ये है कि फिर आफ्टर ऑल इसके मेजर्स क्या अवेलेबल हैं गवर्नमेंट के पास. द पॉइंट इज, एज यू सेड, कई जगह हुआ, इट seemingly is a conspiracy or a planned move. That's fine. But ये तो 9 तारीख 9-10 तारीख के आसपास हुए और अब तक तो 2 हफ्ते हो चुके हैं. तो गवर्नमेंट अब तक क्या कर रही है? Is the government so weak or so lethargic that they don't act fast? In fact, acting slow itself becomes being complicit with the events as such. Why should the government go slow? भाई किसके डायरेक्शन का इंतजार कर रहे हैं? और इज द गवर्नमेंट वेटिंग फॉर द कोर्ट टू गिव द ऑर्डर कि भाई आप प्रोब करो, as has been the case in many past events? Why doesn't the government act on its own when the welfare of the citizens has been entrusted to it? It's as simple as that. ओके नीरज, ये पॉइंट तो चलो क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट इज एट फॉल्ट. अभी 2 चीज़ें हमें देखनी है, एक तो यूपी का मॉडल और एक एमपी का मॉडल. ऑफ कोर्स एमपी का मॉडल तो यूपी के मॉडल को ही रेप्लिकेट कर रहा है, बट हमें ये बात देखने की, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट, सबसे ज़्यादा प्रोसेशंस वहाँ पे निकले, सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स वहाँ पे हैं, और उसके बावजूद भी वहाँ पे कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं हुई. तो ऐसी क्या खास बात है यूपी में, सब लोग कहते हैं. और इनफैक्ट जहांगीरपुरी में लोगों ने जब सब कुछ हो गया, स्टे ऑर्डर भी आ गया, टीवी वाले वहाँ पे गए, तो लोगों ने पूछा वहाँ पे, तो एवरीबॉडी सेड हमें तो योगी चाहिए, यानी यूपी वाला मॉडल चाहिए हमें यहाँ पे. अब यूपी वाले मॉडल में ऑब्वियसली फिर बुलडोजर बाबा का एक नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है. तो ये जो यूपी मॉडल है, इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? हम उसको यूपी मॉडल बोले या यूपी मेथड बोले, दैट इज फाइन, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि व्हाट वर्कड राइट इन यूपी विल वर्क राइट इन अदर स्टेट्स आल्सो, बिकॉज द conditions are different, the population mix is different, and the level of commitment of applying that particular method to control disturbances is different. योगी की एक अप्रोच हो सकती है, शिवराज सिंह चौहान की दूसरी अप्रोच होगी, उसी मॉडल को लेके या उसी मेथड को लेके, राइट? So we cannot say that it is a model which can be replicated at every place. If it is to be replicated, it has to be with different permutations, combinations. चलो वो तो हो गया. अब मुझे ये बताओ, ये यूपी का मॉडल काम कैसे किया? यूपी का मॉडल कुछ नहीं है. See, you have to instill fear in the hearts of the people who are bent on making disturbances, because the method in UP which is adopted, whatever we call it, bulldozer model or Yogi Baba model or whatever, is
very straightforward and simple. Swift action, quick justice, so to say. And these are all encroachers. Why should a government wait or give notice to an encroacher to leave the thing? Well, it's naturally logical that the government throws out the encroachers. हाँ, ये जरूर है कि जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो in most of the cases such people who created disturbances have been violators of law, have been encroachers, have created disturbances. So there is no harm in taking action, but some people say कि एक वो legal recourse होना चाहिए. Legal recourse में कितने हमारे यहाँ ऐसे हैं, except for getting bail at midnight for terrorists, that the courts have been active. So it has to be swift. The message has to go very quickly that such acts will not be tolerated. तो ये जो यूपी मॉडल है, so called यूपी मॉडल या मेथड है, if it is applied at other places swiftly, without leaking the orders, as it was done in this case in Delhi, deliberately, seemingly deliberately, in my view, it won't work. It won't work. It will create more controversies and the situation will be out of hand. It will become more difficult in the coming times. Because if we see pelting of stones on processions was experimented last year also at 1 or 2 places, but this time it was more than a dozen places. So in 2023, we can expect at more than 2 dozen places, the way the things are going, because the rioters know that they have a free hand and it will take a long time to come. And the best allies of these rioters as of now seem to be the courts, seem to be the people with agenda who are using them. नीरज, एक बात बताओ मेरे को, ये जो राइटर्स हैं, दे आर नॉट ऑपरेटिंग इन आइसोलेशन. राइटर्स की तो वो टीम ए है, उसके बाद जो दूसरी टीम है वो सोशल मीडिया पे काम कर रही है, तीसरी टीम एक्चुअली वो जो लॉयर्स हैं और जो प्रिंट मीडिया वाले हैं, टीवी चैनल्स हैं, वो है. और ये जितनी भी टीम है एकदम स्मूथ ऑपरेशन के तरीके से काम कर रही हैं. तो व्हाट डू यू थिंक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया को रोकना? व्हाट एग्जैक्टली इज देयर पर्पस एंड हु इज फाइनेंसिंग देम? As of now, if we are able to see objectively, it seemingly happens to be so that there are people who are opposed to the ideology, they are opposed to the methods and the successes which the current government has got. So they don't want this to happen, especially some of these opposition parties, Congress I being the main, and the rest of them follow. So they don't, seemingly with their actions, it seems that they want to create controversy at every level and create obstacle at every step. And having tried to stick the label of being a corrupt government to other controversies, nothing which has stuck to this government, which actually there was none. Now they feel that this is one thing which can create tensions in the mind of the people till the next elections. So they want to get into power again by hook or by crook. That is why this is happening. And it is, my surprise is, why should the government wait till the events happen? Why should the government not have a plan in place? The rioters, the opponents of the government, they have plan A, B, C, D, as you said, at different levels. Fine. But government, the administration is mightier than these people. That is why we have given the vote to this government to be in power and act. So despite being there for 8 years, did they not have ear to the ground and be ready with a plan to counter these things which are happening? People say this is not so simple. People say that funding is from outside. We keep on harping funding is from outside. So why don't we get to the source of that funding and make it public? This is just an excuse if it has no credible evidence. अच्छा नीरज, एक बात बताओ मेरे को, मैंने आपकी सारी बातें सुनी और मैं काफ़ी कन्विंस्ड भी हूँ. व्हाट एवर यू आर सेइंग, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का फेल्योर है. एक बिल्कुल कश्मीर फाइल्स में भी एक डायलॉग आया था, अगर गवर्नमेंट उनकी है तो सिस्टम तो फिर भी हमारा है. चलो मैं इसी स्टेटमेंट को एम्पलीफाई करता हूँ.
ये जो जहांगीरपुरी वाला, और उसके बाद आपने भी मेंशन किया कि सुप्रीम कोर्ट में क्या एक्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट सपोज टू एंटरटेन दैट, यू नो, आप कोई भी चले जाओ डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में एक नॉर्मल एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के लिए कैसे जा सकते हो? सिंपल सी बात है। मगर फिर भी कोर्ट ने एंटरटेन किया और स्टे ऑर्डर दिया और उसको फिर 15 दिन के लिए एक्सटेंड किया। इसका मतलब ये है कि सिस्टम डेफिनेटली उनका है। इवन इफ यू से कि गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट है, आई डोंट माइंड दैट, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी क्लियर, लेकिन सिस्टम उनका है और उनको ये तक पता चल गया कि कल की ये होने वाला है। वहाँ पे जहांगीरपुरी में रात को ही लॉयर्स हायर हो चुके थे, लॉयर इन पोजीशन में थे, और सवेरे 9 बजे वो सुप्रीम कोर्ट में थे। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि कितनी वेल ऑयल्ड मशीनरी है जिसमें फॉरेन सपोर्ट भी है? और एक बात और, फॉरेन सपोर्ट में पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा आ रहा है बेसिकली वेस्टर्न नेशन से और प्राइमरली यूएसए से। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, बट द पॉइंट इज कि किसी न किसी लेवल पे कुछ तो सपोर्ट मिल रहा है। इस पूरा जो नेक्सस है, ये टीम ABCD जिसके बारे में मैंने कहा, तो उसके बारे में उसको कैसे काउंटर करें, और काउंटर करने के लिए अगर हमें गवर्नमेंट को थोड़ा सा, मैं ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को मैं छोड़ रहा हूँ, बट पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली आके सॉल्यूशन फॉर द टाइम बिंग जो निकलेगा वो बेसिकली योगी मॉडल से ही निकलेगा। और योगी मॉडल बिल्कुल क्लियर है, उनको टीम ए को ब्लॉक करना है। टीम ए को जब आपने ब्लॉक कर दिया, उसको जो आफ्टर ऑल ये जो लॉ के लूप होल्स हैं, इतने सारे जो लूप होल्स हैं, उसको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस टीम्स। और योगी ने वो ही जो एक्सप्लॉइटेशन है लूप होल्स का वो रोक दिया। तो डू यू थिंक इट्स सर्टेनली वर्केबल? क्योंकि लॉ में तो लूप होल्स हमेशा ही रहने हैं, सुप्रीम कोर्ट हमेशा ही रहना है, तो ऑब्वियसली योगी मॉडल कहीं ना कहीं तो काम कर रहा है। But I am just commenting on the basis of the actions which the current government has taken in last few years to deal with these social unrest and dharnas and such controversies, be it CAA, be it the farm protests, or these pelting of stones on the processions or anywhere. It very clearly shows that the government is very competent in being inactive. Number one. Number two, as far as the law is, see, when the government can abrogate Article 370 and 35, which were there for so many years, is it so incompetent, or does it not have a set of lawyers who can help the government? It is basically lack of will, or what they have in mind is very unclear. If we say that the government in power administration is weak, or it cannot do anything against the people who are working against the people who are working against the nation, or getting funding from West or any other place, is the government so incompetent so as to not to get the intelligence or the facts in place? भाई अगर पैसा US से आ रहा है, तो why doesn't government, instead of making some remarks at some forums to get some claps, why does the government not confront the US with the hard facts that this is the thing which is happening? That will be the right example of government of India standing up to these bullies. ये छोटी मोटी उस पे बहस में आगे पीछे जवाब दे के तालियां ले लेना is nothing. Actual, ऐसा आपने कहा, नुकसान तो हमारा हो रहा है। अगर पैसा somebody says कि जॉर्ज सोरोस के थ्रू आ रहा है पैसा, अगर जॉर्ज सोरोस के थ्रू आ रहा है तो भाई ट्रेस करो ना उसकी। ऐसा तो है नहीं कि आजकल के उसमें ट्रेस नहीं हो सकता। फोरेंसिक ऑडिट करा के आप मनी ट्रेल देखें, उसको करें एंड मेक इट पब्लिक एट एवरी फोरम, चाहे वो क्वाड का हो, चाहे वो G7 का हो, चाहे वो बायलैटरल टॉक्स हो। तब देखें ना, तब कॉम्पिटेंसी देखेंगे गवर्नमेंट की। इंटेंट दैट इज वन। तो आपको क्या लग रहा है, ये इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी का इशू है क्या? इंटीग्रिटी पे डाउट नहीं है, डाउट है इन एक्शन पे। दे हैव टू टेक एक्शन क्विकली, नंबर वन, अ वेरी क्रेडिबल एक्शन विच हैज डायरेक्ट बियरिंग ऑन सच इंसिडेंसेस। अगर हम NGOs को कर रहे हैं, इवन कोर्ट, why does the government not stand against the decisions and appeal against the court? मतलब सिर झुकाए
माय लॉर्ड करके खड़े खड़े रहेंगे तो माय लॉर्ड का देख ही रहे ना क्या हो रहा है सारा हिसाब है. Just it's beyond the topic, but I'm just quoting an example. Recently, one of the rapists who had raped a 4-year-old child and killed her got the life sentence commuted to 20 years and some other relaxations. Why? Just because the bench thinks that the person can be reformed. तो फिर कोर्ट की जरूरत क्या है? रिफॉर्म इंस्टीट्यूशंस बना दे, वहां पे भेज दें सबको रिफॉर्म कर दें. और जो वो see, court has to be, the justice has to be even-handed and blind. What seems as of now from the pronouncements which are coming from the courts is that justice is blind to only one and selectively blind, not blind but selectively blind. तो अब ये है जैसे यूपी मॉडल आपने पूछा कि ये काम करेगा नहीं करेगा. यूपी मॉडल की काम करने की जरूरत ही नहीं है अगर सही से सही क्वांटम में एक्शन ले ले तुरंत. टाइम क्यों वेस्ट करते हैं? See, ultimately, if we don't have to act, we'll pass the buck on to the courts, and courts will have a free run, which they are having. So even the courts have to be told that they have to be within the framework of the constitution. अब arbitrarily किसी को अगर है कोई क्या credible cause दिया? What changed that they let off that rapist from death sentence to life imprisonment? तो जो इस तरह के इंसिडेंसेस हैं और खासकर अब इसी से रिलेटेड एक और लेता हूं इंसिडेंट. सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं कोर्ट्स एंड दो सुओ मोटो कॉग्निजेंसेस अगेन present a picture where it seems that the courts are biased towards a particular set of people or community. वेस्ट बंगाल में जब लोग कट रहे थे या केरला में कर्नाटक में कट रहे हैं तो उसका सुओ मोटो वो क्यों नहीं होता? तो नीरज फिर तो आप वही बात कह रहे हो ना कि इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी एक इशू है. दूसरी बात ये कि अगर गवर्नमेंट किसी और की है तो लेकिन सिस्टम तो हमारा है. एंड उस हिसाब से जैसे आप बता रहे हो तो उसमें तो एक साफ नज़र आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी उस सिस्टम का पार्ट है. अरे तो 8 साल से सिस्टम अगर उनका है तो 8 साल से मट्ठा डालते ना, तब तो कुशा की जड़ सूखती. वो तो किया नहीं ना. अगर इफ the person is known by the system which is put in place, right? अगर हम नेहरूवियन उसकी बात करते हैं आज, तो नेहरूवियन socialism or system is so deep now because that gentleman had the capability of infiltrating practically every institution and getting the things done. तो 8 साल में तो बहुत कुछ हो सकता है. 8 साल में तो बहुत कुछ किया जा सकता था. Why do we pass on the buck that we will get it done? हम सोचते हैं, हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं. भर्त्सना निंदा से कुछ नहीं होता. एक्शन सामने दिखे ना, क्या होगा? जो कंट्रोवर्सी आज हो रही है इससे ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी. तो भाई हैंडल करने की कैपेसिटी बनाए गवर्नमेंट की. और देखें, हाँ सिस्टम अंदर से जरूर डेफिनेटली वो खोखला हो रखा होगा, साथ नहीं देते, दैट मानी बात. बट कौन करेगा? करना तो इन्हीं को है ना जो बैठे हुए हैं. अगर ये नहीं कर रहे तो कौन करेगा इसकी जगह? हम आप तो नहीं कर सकते ना. हम आप तो ऐसी बात कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपना रोष प्रकट कर सकते हैं. 2-1 बार हम चाय पी रहे होंगे, चाय छोड़ देंगे, ठंडा पानी पी लेंगे, और क्या कर सकते हैं? तो द पॉइंट इज we have a system, we have a constitution, why don't we act according to it? What do you say? See, योगी की बात करते हैं तो योगी का मॉडल, बिकॉज अब तक किसी ने ऐसा ट्राई किया नहीं था. योगी जी आए, उन्होंने स्विफ्ट जस्टिस डिस्पेंस करनी शुरू कर दी. उसमें भी कंट्रोवर्सी हुई थी जब उन्होंने राइटर्स के पोस्टर्स लगा दिए थे लखनऊ में मेजर चौराहों पर. तो कोर्ट सेट की दैट दिस इज नॉट राइट एंड राइटर्स का वो नहीं होना चाहिए. तो योगी ने दे went ahead with the court's ruling, but उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया था कि भाई जो राइटर्स हैं हम उसको कैसे नहीं पकड़ेंगे. लेट द पब्लिक नो दैट दीज वर द राइटर्स. और ह्यूमन राइट्स की बात आती है कि जी ह्यूमन राइट्स, तो क्या राइटर्स के ह्यूमन राइट्स हैं? जो वो मर गए 72 या 100-150 जितने मरे इन दंगों में, उनके राइट्स नहीं थे? तो ये जो लेंस है ना ह्यूमन राइट्स का या इक्वालिटी बिफोर जस्टिस एंड ऑल दैट इज मतलब वो बड़ा पार्शियल वो है. इट इज नॉट वेरी. ओके नीरज, आपकी बात समझा. अब ये बता मुझे,
देखो मेरा तो एक क्लियर कट ओपिनियन है कि इसमें ये जो प्लेयर्स हैं जो भी ये करा रहे हैं, अल्टीमेट इंटेंशन ये है कि जो इंडिया का मार्च है उसको, स्पेशली इंडिया ऑन वे टू बिकमिंग ए इकोनॉमिक पावर, उसको रोकना है। अब इसमें जो इन्वॉल्व हैं, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोली है बात, दैट गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल। और व्हाट पीपल आर टॉकिंग इज कि एज फार एज यूएसए इज कंसर्न, एज फार एज चाइना इज कंसर्न, दोनों का एक ही इंटरेस्ट रहता है कि इंडिया को किसी न किसी तरीके से कमज़ोर ही रखा जाए, जिससे वो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे। ये फॉरेन मिनिस्टर का भी एक तरीके से आप समझ सकते हो स्टेटमेंट किसी न किसी लेवल पे उसने दिया है। जहाँ तक फॉरेन फंडिंग की बात है, बिल्कुल क्लियर है कि फॉरेन फंडिंग आ रही है, और मैं काफ़ी हद तक वेरी श्योर, मुझे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है कि ये फंडिंग आ रही है। आप कह सकते हैं कि हाँ गवर्नमेंट इसको रोक नहीं पा रही, ऑफ कोर्स काफ़ी हद तक रोक पा रही है, मगर उसके बावजूद भी ये हारी है। इंडिया में लोग सोशल मीडिया पे राना अयूब, आकार पटेल और सब इस तरह के लोग पूरे एक्टिव हैं इन राइटर्स की टीम बी सी डी को एक्टिवेट करने के लिए। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो ये बात जानते हैं, लेकिन एक तो उनको रिस्क है, कम्युनिटी की जो डायनेमिक्स है वो इस तरीके से है कि कोई भी अगर सॉफ्ट लाइन लेगा या रिजनेबल लाइन लेगा तो उसको वहाँ पे खतरा होने वाला है। और साथ में ये कि अगर ये लोग इंडिया को आगे बढ़ने दें उस तरीके से, तो फिर पीपल लाइक प्रशांत भूषण, राना अयूब, आकार पटेल, कपिल सिब्बल, ये सब तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनका जॉब जाए। तो उस तरीके से ये जो टीम है ये पूरी तरह काम करती रहती हैं। अब अल्टीमेट आके ये तो ठीक है, आप कहें कि गवर्नमेंट ने 8 साल उन्होंने ऑलरेडी निकाल दिए, अल्टीमेट सॉल्यूशन तो उन्हीं से आना है, बट सोसाइटी के लेवल पे, हमारे और आपके लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? और इफ़ पीपल आर सेइंग कि भाई योगी मॉडल पूरे देश में एप्लीकेबल होना चाहिए, और योगी मॉडल का ये मतलब नहीं है कि आप रूथलेसली लोगों को ख़त्म कर दें, ऐसा तो कोई इंटेंशन नहीं है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये योगी मॉडल विद मॉडिफिकेशंस एंड ऑल दैट, इट शुड बी अप्लाइड टू द एंटायर कंट्री, रूल ऑफ लॉ? Yes, definitely so. But if we see the approach which Yogi Adityanath has taken since the time he became the MP, one of the youngest MPs at the age of 26, and he has been MP 5 times. So it is not that he is not, and he has asked a number of questions. योगी जी ने लोकसभा में 284 क्वेश्चन पूछे थे पिछले साल तक, जबकि लोकसभा का एवरेज है 180 का पर एमपी. So that way he has been active, taking up social causes for his state, for his constituency. That is fine, and he has good understanding of the administration, no nonsense approach, so to say. And this has also been documented in one of the books, The Monk Who Became the Chief Minister, by Shantanu Gupta. Yeah, that's a good account. But बात यह है कि अगर योगी की तरह स्विफ्टली काम कोई और करेगा तो रोक कौन रहा है उसको? कोई तो रोक नहीं रहा ना. The only thing is the डेमोक्रेसी में, और खासकर हमारी तरह की डेमोक्रेसी में, ये जो वोट की पॉलिटिक्स है, दिस बेसिकली इज द बिगेस्ट डिस्टॉर्शन, बट वी हैव टू लिव विद इट. बट अगर हम अपने मुद्दे पे बात करें कि ये इस तरह के सोशल डिस्टर्बेंसेस जहाँ स्टोन पेल्टिंग हो रही है या डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, तो व्हाई शुड द गवर्नमेंट बी सिटिंग एक्टिव? जिन जिन जगह ये इस तरह के इंसिडेंसेस हुए, वहां पे क्या एक्शन लिए पिछले 2 हफ्ते में हमें तो दिखाई नहीं पड़ता. या अगर कंसिलिएटरी है तो जो कम्युनिटीज इन्वॉल्व हैं उनकी लीडरशिप से क्यों नहीं बात करते? फ्रैंकली सीधे क्यों नहीं बताते कि दिस इज द एक्शन प्लान, इफ you don't follow the rules and regulations of the constitution, these will be the consequences for all communities, not a particular community, for all communities. But if some communities are little more active than the others in asserting their, as you had used the word, to try to dominate the social structure, then definitely if we are secular, it has to be even handed. That's all. ये victimhood का कार्ड नहीं चल सकता. ऐसे victimhood का कार्ड हमारे जैन्स या सिख्स या ज्यूज क्यों नहीं कर लेते हैं? Though they contribute the most to the social welfare and society here.
even Christians for that matter. So government has to be active, not only active, proactive, and has to decide quickly for the greater good of the country. And as you said कि अगर ये सिस्टम में बने हुए हैं तो ये तो पहले से पता था, ये तो गिवन है, चाहे आपने जैसे 3-4 नाम लिए, प्रशांत भूषण, राणा अयूब एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो लोग हैं ये तो होंगे। डेमोक्रेसी में जितना ओपन सिस्टम इंडिया का है उतना कहीं नहीं है, और इसी का दे आर यूजिंग it to their advantage, which the government should have prevented tactfully using rules and regulations. भाई अगर है तो एक बात मानी, अब इनका ये जो सो कॉल्ड होता है ना, ये आईटी सेल की बात करते हैं, बीजेपी के आईटी सेल ने कर दिया या किसी उसका, हम पार्टी लाई नहीं रहे बीच में, हम तो कह रहे हैं एज गवर्नमेंट, व्हाई इज गवर्नमेंट सो, और इज द गवर्नमेंट सो इनकॉम्पिटेंट टू गैदर इंफॉर्मेशन एज टू व्हाट इज हैपनिंग वेयर। और जब उनको पता है कि इस तरह के एलिमेंट हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में ऑब्स्टिकल्स हैं, तो दोज ऑब्स्टिकल्स हैव टू बी टैकल्ड विद, देयर हैज टू बी अ वेरी कोहेरेंट स्ट्रेटजी। हैविंग अ वेरी कॉम्पिटेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इज गुड, राइट, बट आगे की हमारे कंट्री की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का भी तो उसमें कुछ रोल होना चाहिए उनका। आप बताएं। है ना इसमें नीरज, एक तो चूंकि प्रॉब्ली आपने आई डोंट नो गवर्नमेंट में शायद आपने तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर में ही रहे, आप कॉर्पोरेट में ही रहे ना ज़्यादातर टाइम, या फिर यूएनओ के साथ चले गए। मैंने तो ये सिस्टम देखा हुआ है, और इस सिस्टम में क्या है, और ये बिल्कुल फैक्ट है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये बात सही है कि अगर गवर्नमेंट उनकी है तो सिस्टम हमारा है। और सिस्टम में बड़े सिंपल सी एग्जाम्पल है, आप जहांगीरपुरी वाला आप देखो, इंसिडेंट देखो ना, आप किसी सुप्रीम कोर्ट के वकील को कभी हायर करने चले जाओ, आपको मिलेगा क्या वो? हु इज गोइंग टू पे फॉर इट? कितना कॉस्टली है वो। लेकिन यहाँ पे देखो, अगले दिन 9 बजे उधर बुलडोजर पहुंचा भी नहीं, और ये वकील सुप्रीम कोर्ट में सामने थे चीफ जस्टिस के। इसमें एक चीज और है, देयर पिटीशन वाज लिस्टेड एट नंबर 22, बट व्हाई वाज इट हर्ड फर्स्ट? तो इसमें तो बायस दिखाई दे रहा है सिस्टम में ही। अगर उनका 22वें नंबर पे था लिस्टिंग, तो 22वें नंबर पे सुनते, पहले ऊपर कैसे पहुंच गई? व्हाई डिड इट जंप और क्रॉस सो मेनी पिटीशंस इन लाइन? वही मैं कह रहा हूँ ना नीरज, मतलब इस सिस्टम में अगर आप सोचो ना कि जब आपके अंदर ही इतने सारे लूप होल्स हो, और ये फैक्ट है कि डेमोक्रेसी जैसी हमारे यहाँ है, इसको आप ओपन डेमोक्रेसी बोल दीजिए, मैं तो इसको फॉल्टी डेमोक्रेसी बोलता हूँ, क्योंकि इसमें सब कुछ है मगर वो नहीं है जो रिजल्ट ओरिएंटेशन के लिए ज़रूरत है, और वो सबसे बड़ा पिटफॉल है। और इसमें मेरे को कोई शक नहीं है कि यूएसए के एनजीओज, ऑर्गेनाइजेशंस, और ऊपर से जो हमारी ये टीम ABCD, और एक बात और है, जो खास बात ये कि अगर पैसा यूएसए से आता है और यहाँ पे जो ये लेफ्ट लिबरल्स हैं, जैसे कितना स्ट्रेंज सा कॉम्बिनेशन है, इधर लेफ्ट लिबरल्स हैं, पैसा रशिया से नहीं आ रहा, पैसा यूएसए से आ रहा है। अच्छा, उसके बाद उस पैसों को यूज़ कौन कर रहा है? बेसिकली जो ये मुस्लिम्स जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, दे आर द वन हु आर यूजिंग दिस मनी। और किस पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हैं? इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को रोकने के लिए, किसी न किसी तरीके से इसको रोका जाए। बिकॉज अगर सॉल्यूशन की हम बात करें कि पूरे उसमें इनफैक्ट आप जो बात कर रहे थे ना कि भाई गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि वो इस सिस्टम को एक तरीके से डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। ऑब्वियसली इंटरनेशनल रेपरकशंस उस बात के होंगे अगर आप मिशनरीज की एक्टिविटी को इंडिया में, या जो एनजीओज हैं, और ये सब टेररिज्म, कन्वर्जन, ड्रग मनी, ऑल आर इंटर रिलेटेड, मुझे इसमें कोई भी शक नहीं, एंड आई हैव गॉट द फर्स्ट हैंड नॉलेज अबाउट दैट। और गवर्नमेंट के लिए तब तक ये पॉसिबल नहीं है जब तक हम लोग इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल ना हो जाएं, स्ट्रॉन्ग ना हो जाएं। और ऑफ कोर्स मुझे उसके साइंस नज़र आ रहे हैं अभी। द वे दिस फॉरेन मिनिस्टर हैज़ कंडक्टेड हिमसेल्फ इन यूएसए रिसेंटली, जब वो 2 के डायलॉग के लिए गया, तो मुझे बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया इज़ ट्राइंग टू असर्ट। और अभी मुझे एक चीज़ और भी लग रही है, ये जो पूरा जो चला है माहौल जो बना है वायलेंस का,
अपनी पावर को एक्सप्रेस करने का, राइटिंग के थ्रू, स्टोन पेल्टिंग के थ्रू, कि दूसरी कम्युनिटी तो कुछ बोल ही ना पाए, इवन इफ दे आर मेजोरिटी कम्युनिटी। अल्टीमेट इंटेंशन मुझे ऐसा लगता है कि जो सीए के जो रूल्स फ्रेम होने वाले हैं उनको ये अब रोकना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो उनकी नहीं है, गवर्नमेंट वो डेमोक्रेसी के तरीके से नहीं जीत सकते, और जब डेमोक्रेटिक वे में नहीं जीत सकते तो गवर्नमेंट को काम न करने दो। मुझे तो ऑनेस्टली ये लगता है, और हमारे पास सॉल्यूशन सिर्फ इसका यही है कि किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट अपना काम निकाले। एक बार को अगर आप पावरफुल हो जाए, चाइना आल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम, मगर उस टाइम पे डेंग जियांगपिंग था, दैट जेंटलमैन वाज देयर, तो उसने कहा कि आराम से बैठो, अभी अपनी गर्दन नीचे करके अपना काम करते रहो, जो सबवर्सिव एलिमेंट्स हैं उनको थोड़ा डाउन करके रखो, जब इकोनॉमिकली पावरफुल हो जाओ तो फिर अपने आप को असर्ट करो। मुझे तो लगता है कि इंडिया को ये ही अप्रोच करनी पड़ेगी, और इसमें मुझे ऑफ कोर्स योगी वाला जो फार्मूला है कि किसी न किसी तरीके से एक ऐसा डिटरेंट एस्टेब्लिश कर दो कि लोग राइटिंग या स्टोन पेल्टिंग ना कर पाएँ और रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें, क्योंकि अदरवाइज तो टीम इनकी पूरी बिल्टअप है, कपिल सिब्बल उनके नेताजी हैं, और उसमें वो लॉ में जितने लूप होल्स हैं सबको यूज करने के लिए तैयार है विद द हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बताओ। देखिए, ऐसा है, ये तो गिवन है दैट seeing the current trend in the judicial pronouncements and the actions which it has taken, कपिल सिब्बल जैसे आदमी तो रहेंगे, कपिल सिब्बल चले जाएंगे, राणा अयूब चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा। So these are basically creatures which will keep coming up one after the other. ऐसा नहीं है कि ये बंद हो जाएंगे इससे। दूसरा, जब हमने अभी बात करी कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गए तब we will be able to do things. So वो जो पाथ है इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने का, उसमें ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो कंट्रोवर्सीज अलग अलग हो, चाहे सीए हो, चाहे फार्म लॉ हो, तो वो तो गवर्नमेंट को बैठ के खुद स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा हाउ टू स्टॉप दीज ऑब्स्टिकल्स और कंटेन दीज ऑब्स्टिकल्स सो दैट द मिनिमल डैमेज हो और हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो। Despite pandemic, we exported much more than we were doing in normal years. And it was possible because of the various positive actions of the government. तो उसी तरह के पॉजिटिव एक्शन लें, बट इस तरह के जो सोशल डिस्टर्बेंसेस हैं इसको हैवी हैंड से खत्म करें। और ये बेसिकली लगता ये है कि they don't want to take responsibility, they want to let everything be on the courts. भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? जो जस्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें करें और फेस करें कोर्ट को, क्या दिक्कत है? मेरा मानना ये है। और आपने पूछा हमारे आपके लेवल पे क्या होगा? हमारे आपके लेवल पे इस तरह की वार्ताएं हम जैसे लोग करते रहें, अपने जो सर्कल हैं उसमें वो समझाते रहें, सिखाते रहें, दैट्स ऑल, दैट इज द ओनली वे आउट। वरना हर बजट में ये पूछते हैं कि साहब टैक्स रिलीफ कितना मिला। भाई टैक्स रिलीफ तो तब मिलेगा अगर देश बचा रहेगा। सो द कंट्री हैज टू बी प्रिजर्व, तभी इस सब चीजों के मायने हैं। एंड वी हैव टू रीडिफाइन और एक्चुअली define secularism very clearly, not only by words in the constitution but by the actions, by standard operating procedures. Only then we can do things. वरना इस तरह से तो ये बेल्जियम में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, ये हिंदुस्तान भी बेल्जियम बन जाएगा अगले 10-12 साल में। So if we have to live peacefully, it has to be with heavy hand. There is no other way out. अभी आपने देखा होगा नीरज, 2 पॉइंट आपने नोट किए कि नहीं रिसेंटली? एक तो जो ऑफ कोर्स जयशंकर वाला तो एक था, वो दूसरा जयशंकर का एक और भी है स्टेटमेंट जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर इंडिया में आया। एंथोनी ब्लिंकन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि वी आर हैविंग ए कीन वॉच ऑन सम ऑफ द ग्रुप्स हु आर वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स एंड ऑल दैट, ऐसा उसने इनडायरेक्टली बोला। तो आप देखो उसके बाद जयशंकर का भी स्टेटमेंट आया। लेकिन इसके अलावा एक स्टेटमेंट अभी जब रेड फोर्ट से मोदी जी ने दिया, एंड ही हैज मेंशन सो मेनी थिंग्स, बट सबसे जो पर्टिकुलर उन्होंने कहा सीए के बारे में उन्होंने कहा, फैक्ट ये है कि देयर इज ए डेलिब्रेट एफर्ट, इंटरनेशनल एफर्ट टू स्टॉप आवर मार्च
एंड जो पॉइंट आपने बताया गवर्नमेंट लेवल पे और सोसाइटी के लेवल पे और हम लोगों के लेवल पे भी, हम लोगों का एक्चुअली सोशल मीडिया में, बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है, तो नैरेटिव जो सेट करने वाली बात है ना, वो हमारे और आपके जैसे लोग वो कर सकते हैं, जिससे पब्लिक को पता चले कि रियलिटी क्या है और कैसे कैसे गवर्नमेंट कर रही है और क्या नहीं कर रही है, वो भी इम्पोर्टेंट है, नो डाउट अबाउट दैट। अब आप फार्म लॉज देखें, फार्म लॉज पे आपने डिस्कशन भी किया था। Those laws were for the welfare of the large section of farmers, except minority जो उनके साथ नहीं थी, and this was accepted by the Supreme Court appointed panel also. Government knew that these farm laws are beneficial, so why did the government not assert itself? Why did it take it back after waiting for so many months? That is the difficulty, and that is where one has to see. गवर्नमेंट की क्या मजबूरी थी मुझे पता नहीं, मैं तो जो एक्शंस उनके हैं मैं तो उन्हीं पे कमेंट कर सकता हूं। अब उनकी क्या कैलकुलेशन थी, क्या आगे कैलकुलेशन करेंगे, उसका फायदा नहीं, फायदा तो जो सामने दिख रहा है रिजल्ट, उससे होगा। आप देखें, गवर्नमेंट का एक सेक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया तरीके से बना रहे हैं, इट इज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया, दैट इज फाइन, बट उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से यूटिलाइज करने के लिए जो लोग होंगे, जो फ्रेट होगा, जो पैसेंजर्स होंगे, उनकी सेफ्टी और वो तो इंश्योर करें। अभी आपने देखा, आपने फार्म लॉज की बात की, वो एक अनदर एग्जांपल था। सबको पता है कि ये फार्म लॉज बिल्कुल सही थे और उसके बावजूद भी आप देखो तो कितना सपोर्ट था उनको, सो कॉल्ड, जो कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि फार्म लॉज सही थे मगर फिर भी वो चुप थे, वो पीछे की तरफ थे, लेकिन लेट द गवर्नमेंट हैंडल। और सबको पता है पैसा बाहर से आ रहा है, एवरीबॉडी नोज इट। नहीं, ऐसा है डॉक्टर साहब, पैसा बाहर से आ रहा, दैट इज फाइन, बट दैट कैन नॉट बी एक्सक्यूज एवरी टाइम। अगर गवर्नमेंट को पता है पैसा बाहर से आ रहा है, तो व्हाई डज द गवर्नमेंट नॉट यूज इट्स मशीनरी एंड एक्सपोज दीज पीपल? द गवर्नमेंट शुड हैव कम्युनिकेटेड विद द मासेस in much more effective way than what it did and what it is doing. नीरज, वो सब बातें पब्लिक फोरम पे तो नहीं हो पाएंगी। कि योगी आदित्यनाथ का मॉडल या मेथड देख के शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनाने की कोशिश करी, कुछ और गवर्नमेंट्स ने भी अपनाने की कोशिश करी, दैट इज फाइन। भाई, इंतजार किसका कर रहे थे? योगी आदित्यनाथ ही क्यों फॉलो करेंगे? अपने आप करना शुरू करना था ना उनको। अगर हमें वाकई मैसेज देनी है लोगों को, why should we follow somebody else's model? We should have tailored something else or even better in our state, जहां जुडिशियल कंट्रोवर्सी भी ना हो और काम भी हम पूरा कर सकें। अरे किसी जज साहब के बंगले पे कोई चाय का खोखा लगा ले, जज साहब उसको क्या कोर्ट में जाके खड़े होके करवाएंगे, इंतजार करेंगे? आई डोंट थिंक सो। वो तो थानेदार को बुला के लोकल उसको कहेंगे भाई इसको हटाओ, और वो हटा दिया जाएगा। Hey, you got a point. Yeah, you got a point. Sure. I think wonderful discussion or lot many things we covered. Thank you so much, Neeraj. Thank you, sir. It's really a pleasure interacting with you. बहुत काफ़ी आज वास्ट टॉपिक्स डिस्कस हो गए। चलो बना, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट। तो आपने ये डिस्कशन देखा, इट इज़ वेरी क्लियर, एक्शन हैज़ टू बी टेकन एट वेरियस लेवल्स। Yogi Maharaj, there is no doubt he is doing a wonderful job and he is not allowing people to exploit the loopholes of the law. That is very, very important. So will the Yogi model will do in the rest of the India? I am sure it will. It will. So thank you so much. I will see you in next video. मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।